సమాచారం కోసం 95 న్యూస్ ఇప్పుడు యాప్ లో మీ ముందుకు వచ్చింది. వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకుని న్యూస్ అప్డేట్ తెలుసుకోండి. ప్రతి క్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం. అన్ని జిల్లాల్లో ఉత్తర దక్షిణ తెలంగాణ అనేది భేదం లేకుండా, హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీ పరిధి అనేది లేకుండా అన్ని జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు అఖండ మెజారిటీతో గెలవబోతా ఉన్నారు. ఈ యొక్క రైతులకి అతను ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన 4వ రోజు ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పిన ప్రబుద్ధుడు 3వ రోజు ఒక మీటింగ్లో ఒకటేసారి నేను రుణమాఫీ చేయను, విడతల వారీగా 4 సంవత్సరాలు విడతల వారీగా చేస్తాననగానే 3వ రోజే అతని యొక్క దిష్టిబొమ్మలు దగ్ధం చేసి, కేసీఆర్ యొక్క దిష్టిబొమ్మలు దగ్ధం చేసి రైతులందరూ రోడ్ల మీదకు రావడం జరిగింది. నాకు తెలిసినంత మట్టుకి ఏ రాజకీయ పార్టీలో మన భారతదేశంలో కావచ్చు, విదేశాల్లో కూడా ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా అధికారంలోకి వచ్చిన 3వ రోజే ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిరసనని స్వీకరించడం అనేది ఇతనికి సాధ్యమైంది. కేసీఆర్కి అదే రోజు రైతులందరూ కూడా ఇతన్ని నిరసించారు. ఆ తర్వాత అతను చేస్తున్న తప్పులు, ఎలక్షన్ హామీ, ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో అంటే అది ఒక ప్రమాణ పత్రం. మేము గనక మీతో ఓట్లు వేయించుకొని అధికారంలోకి వస్తే మా పార్టీ తరఫున మేము ఈ ప్రమాణం చేస్తున్నాం, మీరు మాకు ఓట్లేసి గెలిపిస్తే ఈ హామీలన్నీ నెరవేరుస్తాము అని చెప్పేసి ఇచ్చే ప్రమాణ పత్రమే ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో. అసలు ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోకే విలువ లేదు. 3 ఎకరాల భూమి అన్నారు దళితులకి. అతను ఎన్ని చేపించాడో తెలంగాణ ప్రజలందరికీ, అతను ఏమేమి హామీలు ఇచ్చాడో, ఏమేమి హామీలు తీసి అటకనెక్కిచ్చాడు అనేది కూడా తెలంగాణ ప్రజలందరికీ తెలుసు. దాంట్లోకి మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేయడం అవసరం లేకుండా ఇక్కడ నాతో పాటు డాలీ గారు, ఆమె గాజియాబాద్ పార్లమెంట్కి పోటీ చేశారు, నేషనల్ స్పోక్స్ పర్సన్. అలీ గారు ఢిల్లీకి చెందిన సీనియర్ నాయకుడు, ఎమ్మెల్యే కంటెస్ట్ చేశాడు ఢిల్లీలో. వాళ్ళతో పాటు గౌతమ్ గారు, ఈయన కూడా ఢిల్లీకి చెందిన నాయకుడు. వారి యొక్క అనుభవాలతో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఇష్యూ మీద మీడియాను ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి నేను ఈరోజు ఈ సమావేశం పెట్టేసేసి 2 మాటలు మీకు చెప్పే అవకాశాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ముందుగా జాతీయ అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధికార ప్రతినిధి గాజియాబాద్కి చెందిన డాలీ గారు మాట్లాడతారు. नमस्कार। तेलंगाना में यूं तो बीआरएस की सरकार ने बहुत सारे वादे आप सबके बीच में किए थे, तेलंगाना की जनता को बहुत सारे लुभावने सपने दिखाए थे, लेकिन उसकी असलियत आज सड़क पर, रोड पर सब जानते हैं कि क्या वादे किए और क्या दिया। इसमें अलग अलग विषय पर सब बात करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपके सामने महिलाओं की बात करके। तेलंगाना में जिस तरीके से महिलाओं को इस सरकार ने 2014 के बाद वादे किए, उसमें से दिया क्या गया? इन्होंने कहा था महिलाओं को सशक्त करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट, बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। महिलाओं को कहा गया था महिलाओं के बैंक बनेंगे, लोन दिए जाएंगे महिलाओं को, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज बनेंगी। और हुआ क्या? रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि ना महिलाओं को बैंक मिले, ना महिलाओं को लोन्स मिले, ना महिलाओं की यूनिवर्सिटीज बनी, और महिला किसानों को जो वादे किए थे उसमें भी अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना की सेकंड हाईएस्ट, तेलंगाना की महिला किसानों के सेकंड हाईएस्ट पूरे देश में सुसाइड के केसेस है। ये दिया है बीआरएस की सरकार ने महिलाओं को। इन्होंने कहा था लिकर में इनके घर वालों का क्या हाल है वो आप सब जानते हैं, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। क्या गठबंधन, क्या साइलेंट पैक्ट करके अपना बचा रखा है इन्होंने, ये भी सब आप जानते हैं। तो लिकर से आज महिलाओं के घरों के क्या हाल हो रहे हैं तेलंगाना में। हाईएस्ट लिकर कंजम्पशन है तेलंगाना में, इंडिया में।
जिससे आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिससे आज महिलाओं के साथ लिकर कंजम्पशन से रोज महिलाओं के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया जाता है। लेकिन जो लिकर के पैक्ट कर डाले, स्कैम कर डाले, जिनके ऊपर ईडी की जांच बिठा दी जाए, वो महिलाओं को सम्मान क्या देंगे? वो महिलाओं को बचाएंगे क्या, जिनके खुद के हाथ रंगे हुए हैं उसमें? महिलाओं के बढ़ते अत्याचारों की अगर मैं मामलों की बात करूं तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि वो तेलंगाना जिसकी कल्पना सोनिया गांधी जी ने की थी, सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना की कल्पना की थी और एक स्वर्णिम भविष्य तेलंगाना को देने के लिए सोनिया गांधी ने सोचा था। लेकिन तेलंगाना की महिलाओं का दुर्भाग्य देखिए कि सरकार आती है, बड़े बड़े वादे करती है, बड़ी बड़ी स्कीमें लाती है, लेकिन जब हम अत्याचार की बातें करते हैं तो तेलंगाना आज साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उसमें नंबर 1 है महिला अत्याचार में। यह दिया है बीआरएस सरकार ने तेलंगाना की महिलाओं को। अब आप देखिए, वुमेन वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात कही थी और अपने 2014 के मैनिफेस्टो में प्रॉमिस भी किया था वुमेन वेलफेयर बोर्ड। मेरे पत्रकार भाई यहां बैठे हैं, आप लोग रोज खबर कवर करते हैं, आप लोग रोज लिखते हैं, आपको हम पढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, क्या कहीं किसी ने वुमेन वेलफेयर बोर्ड देखा? हमने तो नहीं देखा कि कोई वुमेन वेलफेयर बोर्ड आया। तो दिल्ली में बैठी सरकार और तेलंगाना में बैठी सरकार वादे और जुमले बड़े बड़े, पिक्चर बहुत बड़ी दिखाई जाएगी आपको, लेकिन जमीन पर, धरातल पर शून्य। फेल मॉडल ऑफ बीआरएस गवर्नमेंट। कांग्रेस पार्टी ने लगातार जो गारंटीज दी वो काम किया है। मैं राजस्थान की बात करूं तो 500 रुपए का गैस सिलेंडर महिलाओं को मिल रहा है। मैं कर्नाटका की बात करूं, फ्री बस सेवा, महिलाओं को हर महीने गृह लक्ष्मी स्कीम से पैसा कर्नाटका में मिल रहा है। हम लगातार जो वादे कर रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, चाहे ओपीएस हो, हमने किया है हिमाचल प्रदेश में। हमने राजस्थान में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज राजस्थान के लोगों को दिया है। हम कर्नाटक में लगातार अपनी गारंटीज पर काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ मॉडल ने पूरे देश में यह साबित किया है, चाहे किसानों की मैं बात करूं, महिलाओं की बात करूं, चाहे मैं युवाओं की बात करूं, नौकरियों की बात करूं, लगातार छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने एक मॉडल स्थापित करके पूरे देश को बताया है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एक मॉडल के रूप में उभर कर आ रही है, जहां गाय के गोबर तक का इंतजाम, जिसका पैसा किसानों को मिल रहा है। यह कांग्रेस की सरकार है। मैं आज यहां की बात करती हूं कि महालक्ष्मी स्कीम, जो 6 में से एक गारंटी है कांग्रेस की, उसमें हमने ये वादा किया है तेलंगाना की मेरी बहनों को, माताओं को, और प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से लगातार महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है सड़कों पर, वो आपने देखा होगा, चाहे महिलाओं पर अत्याचार के मामले हो, बलात्कार के मामले हो, कोई भी मामले हो, जो हमने कहा है वो हमने किया है। और इन गारंटीज को भी प्रियंका गांधी जी पहली नेता थी जो कर्नाटक में ये कहकर गई कि हम महिलाओं को हर महीने इतना रुपया देंगे, फ्री बस सेवा देंगे, और हम आज कर्नाटक में दे रहे हैं। हमने यहां तेलंगाना की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, बच्चियों के लिए सोचा है, और हम 2500 रुपया महीना, हर महीना तेलंगाना की महिलाओं को देंगे। ये कांग्रेस की एक गारंटी है। हम गैस सिलेंडर राजस्थान में, कर्नाटक में 500 रुपए का दे रहे हैं।
हम तेलंगाना की महिलाओं के घर का बजट बिगड़ने नहीं देंगे। सत्ता में आएंगे तेलंगाना में, सड़कों पर काम किया है। ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आते ही कांग्रेस पार्टी अपने बहनों के लिए 500 रुपए का गैस सिलेंडर कर उनके घर का बजट संवारेगी। कहीं नहीं हो रहा पूरे देश में, जुमले छोड़े जाते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर करके दिखाया है। महिलाओं को कर्नाटक की तरह हम TSRTC की सभी बसेस पूरे प्रदेश में जहां भी चलेंगी, हमारी बहनें, माताएं, बुजुर्ग, महिलाएं फ्री बस सेवा का आनंद ले पाएंगी। उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि कोई उन्हें पैसा दे तब वो अपने मायके जाएंगी, तब वो अपने घर जाएंगी, अपनी बहन बेटी परिवार से मिलने जाएंगी, घूमने जाएंगी। कांग्रेस, तेलंगाना कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो महिलाओं को इस बस सेवा का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। हम उनके घर का बजट फिर से ये फ्री बस सेवा देकर संवारेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रैवल पर कितना खर्चा एक आम घर में, एक मध्यम वर्ग परिवार में होता है। और इस तरीके की सेवाएं देकर कांग्रेस पार्टी फिर यह बताएगी कि हम महिला सम्मान की बात सिर्फ करते नहीं हैं। जब हम देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बनाकर पूरे विश्व में हिंदुस्तान का लोहा मनवा देने वाली प्रधानमंत्री देश को दे सकते हैं और पूरे विश्व को दिखा सकते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान सिर्फ करते नहीं हैं, कहते नहीं है, करते हैं। हमने करके दिखाया है। हम महिलाओं को पंचायतों में लाए हैं, 33% आरक्षण देके हमने महिलाओं को पंचायतों में, पालिकाओं में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में हक दिया है। आज अगर महिलाएं, मुझ जैसी महिला अगर चुनाव लड़ पाती है, आप सबके बीच तेलंगाना में आकर अपनी बात रख पाती है, तो ये सशक्त महिला शक्ति कांग्रेस ने बनाई है। पहली महिला प्रधानमंत्री देकर, पहली महिला राष्ट्रपति देकर, पहली महिला स्पीकर देकर, पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष देकर कांग्रेस पार्टी ने सरोजिनी नायडू जी के रूप में साबित किया है कि एक नेशनल पार्टी की अध्यक्ष एक महिला हो सकती है। महिलाओं को बड़ी पार्टियों के नेतृत्व दिए जा सकते हैं और महिलाओं को हम आगे लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हम करते आए हैं और हम करेंगे। सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना का जो ख्वाब देखा है, बदकिस्मती रही कि वो पूरा नहीं हो पाया। झूठ और जुमलों के जाल में तेलंगाना के लोगों को फंसाया गया, लेकिन स्वर्णिम सपना जो सोनिया गांधी जी ने देखा था तेलंगाना की जनता के लिए, मुझे उम्मीद है इस बार कांग्रेस पार्टी वो साकार कर पाएगी। और कांग्रेस पार्टी ये गारंटीज देकर जो तेलंगाना की जनता के लिए करने जा रही है, वो एक इतिहास साबित करेगा तेलंगाना में। आगे के लिए मैं आपके बीच में यूथ पर बात करने के लिए गौतम सेठ जी से कहूंगी कि आपको यूथ पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, हमारे देश के संविधान का जो मूल है, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल। लोगों की शक्ति, जो लोग वोट के द्वारा सरकारें बनाकर सरकारों को देते हैं, वो शक्ति लोगों तक वापस वेलफेयर स्कीम्स के तौर पर पहुंचनी चाहिए। यही हमारे संविधान का मूल रूप। मगर दुख की बात है कि आज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के मुखौटे के पीछे, इन द क्लोक ऑफ डेमोक्रेसी एंड आर्बिट्री रूल, एक तानाशाही सरकार दिल्ली में नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और यहां केसीआर चला रहे हैं, यहां बीआरएस चला रही है और वहां बीजेपी चला रही है। केसीआर के बड़े भाई नरेंद्र मोदी वादा करते हैं 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, और नरेंद्र मोदी के छोटे भाई केसीआर तेलंगाना में वादा करते हैं
2 लाख नौकरियां जो हैं वो हर साल तेलंगाना के युवाओं को दी जाएंगी। बड़े दुख से मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि जिन युवाओं के मत से बनती हैं सरकारें, आज तेलंगाना के वही युवा दर बदर भटक रहे बेचारे। क्यों? बीआरएस ने जो वादा किया था गवर्नमेंट जॉब हर हाउस होल्ड में देने का, क्या वो पूरा हुआ? क्या बीआरएस फेल नहीं हुई कंडक्ट करने में सिंगल ग्रुप 1, 2, 3, 4 और डीएससी रिक्रूटमेंट 2014 से? क्या कुछ भी पूरा हुआ? क्या बीआरएस ने जो कहा था कि 3016 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा प्रत्येक युवा को, क्या वो पूरा हुआ? आज केसीआर साहब से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 1,71,912 आप तेलंगाना के हर एक युवा के कर्जदार हैं अपने वादे के मुताबिक, जो आप पूरा करने में विफल रहे। तो मुझे आज कहने में बिल्कुल कोई दो राय नजर नहीं आ रही है कि केसीआर के वादे बांस की तरह लंबे हैं मगर अंदर से खोखले हैं, खोखले। सरकारें चलाई जा रही हैं कर्ज लेकर। देखिए गवर्नेंस मॉडल, देखिए इनका, युवाओं के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकारें चलाई जा रही हैं कर्ज लेकर, और जो रेवेन्यू पोटेंशियल है तेलंगाना का, जो पैसा तेलंगाना की स्टेट अपने रिसोर्सेज से कमा सकती है, वो केसीआर और केसीआर के परिवार की जेब में जा रहा है। डायरेक्ट एलिगेशन है कांग्रेस पार्टी का, जेब में जा रहा है। तेलंगाना के युवाओं के हक को केसीआर और उसका परिवार आज खा रहा है, और आज कांग्रेस पार्टी केसीआर साहब को कहना चाहती है कि तेलंगाना के युवाओं के हक को मारने वाले परिवार की सत्ता से विदाई अब तय। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि 5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया इन लोगों ने तेलंगाना के ऊपर? क्या मैं सच नहीं कह रहा कि आज तेलंगाना के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 1,42,842 रुपीस का कर्ज है? एक एक नागरिक के ऊपर तेलंगाना के 1,42,842 का जो कर्ज है। सरकारें भंवरे की तरह होती हैं, वेद लिखते हैं, शास्त्र लिखते हैं, भंवरा भी खुश और फूल भी खुश, मगर केसीआर और बीआरएस तुम तो खून चूसने वाली जोंक बन गए, खून चूसने वाली जोंक। बर्बाद कर दिया तुमने इस प्रदेश के युवाओं का जो भविष्य है, और उसको गिरवी रख दिया और स्टेट के रिसोर्सेस को अपने जेब में डालने का काम किया। तेलंगाना वाले आज केसीआर साहब से कह रहे हैं, 16 तारीख को अपना मैनिफेस्टो भी लेकर आने वाले हैं, तो तेलंगाना वाले अब अभी से कहना शुरू हो गए, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं केसीआर साहब, बातों का क्या? कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं केसीआर साहब, बातों का क्या? और अंततः मैं यही बात कहना चाहता हूं कि इस देश में जब भी इंकलाब हुआ, मैं पंजाब से आता हूं, शहीद भगत सिंह की धरती है, तो इस देश में जब भी इंकलाब हुआ वो इंकलाब युवाओं से उठा, और जब जब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम इन सरकारों ने करा, अपनी जेब को भरने का काम इन सरकारों ने करा, तो उस प्रदेश के, उस प्रांत के, उस नेशन के युवाओं ने उन सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करा। तो मैं आज तेलंगाना के युवाओं से आह्वान भी आप लोगों के द्वारा करना चाहता हूं कि उठ बैठो, अब वक्त कहां पहुंचा जब केसीआर के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो, चलते भी चलो, क्योंकि अब कांग्रेस के द्वारा तेलंगाना के युवाओं के हक युवाओं के द्वार तक पहुंचाए जाएंगे, युवाओं के द्वार तक पहुंचाए जाएंगे। धन्यवाद। अब आपके बीच में अली मेहंदी जी, एक्स एमएलए कैंडिडेट दिल्ली से, नेशनल पैनलिस्ट, वो आपसे करप्शन पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कुसुम गरू, और सभी मेरे प्रेस के मित्रों को मेरा नमस्कार। साथियों, हम लोग दिल्ली से यहां पर आए हैं। अभी आपने डॉली शर्मा जी और गौतम सेठ जी को सुना, उन्होंने जो उनके जज्बात थे, क्योंकि जब हम दिल्ली में बैठकर आप लोगों द्वारा
जो न्यूज हम तक पहुंचती है, जब उसे सुनते हैं तो दिल बहुत दुखता है, क्योंकि पूरे देश में अब ये चीज मशहूर हो चुकी है कि तेलंगाना के अंदर जो सरकार चल रही है वो सरकार नहीं है, वो फैमिली मैन की सरकार है, स्कैमली। ये हम सुनते चले आ रहे हैं कि पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा करप्ट स्टेट कोई है, सबसे ज्यादा करप्शन चरम सीमा को छू रहा है, तो वो तेलंगाना के अंदर छू रहा है। इसका प्रमाण हमें अलग अलग तौर पर मिलता है, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली से हूं, एक बात मैं आप लोगों से भी प्रेस के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली के अंदर एक लिकर पॉलिसी बनाई गई और लिकर पॉलिसी के अंदर जब वहां सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी और वहां पे विजय नायर नामक एक शख्स को पकड़ा गया, और जब वो चर्चा लंबी चली तो उसके तार तेलंगाना से जुड़े हुए थे। तेलंगाना में जब वो तार जुड़ते जुड़ते आए तो वो मुख्यमंत्री की बेटी के द्वार तक भी वो तार पहुंच गए। ईडी और सीबीआई ने उनको समन भी किया, उनको दिल्ली बुलाया भी गया, उनसे बात भी हुई। आज दिल्ली के अंदर 3 मंत्री, 2 मंत्री और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईडी ने जेल के अंदर पहुंचा दिए हैं। मैं सीधा सवाल हमारे प्रेस के मित्रों द्वारा यह करना चाहता हूं कि कविता जी, जो कि मुख्यमंत्री जी की बेटी है, उनको अब तक ईडी ने क्यों नहीं पकड़ा? यह साफ तौर पे उस बात को दर्शाता है जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने तेलंगाना में आके कहा था, यह बीआरएस नहीं, यह बीजेपी रिश्तेदार समिति है। यह क्यों कहा था राहुल जी ने? वो इसलिए ही कहा था कि आप एक भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसको बदल के दूसरा जो अपने लिए सूटेबल अध्यक्ष है उसको लाके बिठा देते हैं ताकि वो आपकी बात करे पैसों के जोर पे। और वो पैसा कहां से आ रहा है? वो तेलंगाना के, जैसे कि गौतम भाई ने कहा कि उनकी युवाओं को, हमारी बहन डॉली जी ने कहा कि महिलाओं की जेब से निकालकर, युवाओं की जेब से निकालकर, किसानों का खून चूसकर वो पैसा बीआरएस अपनी फैमिली के जेब में डाल रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है जब हम ये देखते हैं कि ये फैमिली पार्टी, जहां पर केसीआर फैमिली के 3 मंत्री हैं और 3 उस फैमिली के मंत्री 11 पोर्टफोलियो को कंट्रोल में करते हैं, और वो भी कौन से? एक फाइनेंस है, रेवेन्यू है, हेल्थ है, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो पूरे तेलंगाना को कंट्रोल करता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अलावा हमारे प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी हों या कुसुम जी हों, उन्होंने इस सवाल को उठाया, कांग्रेस पार्टी ने इस सवाल को उठाया, लेकिन बड़े अफसोस की बात होती है कि और कोई इस सवाल को उठाने के लिए तैयार नहीं। और खुली बदमाशी बीआरएस के थ्रू करी जा रही है। पूरा देश देख रहा है कि उनकी फैमिली के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, किसी और के पास कुछ है नहीं। एकड़ों जमीन, 650 एकड़ जमीन उनके एमएलए ले जाते हैं, कुछ और 800 एकड़ जमीन उनके मंत्री ले जाते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। पुलिस के लोग यहां पर कांग्रेस के हमारे लीडर्स को रोकते हैं उनके घरों से निकलने के लिए। कल हम एक लीडर के पास थे, हम तीनों लोग, वो लीडर हमें बता रहे थे कि वो किसी जहां से एमपी लड़ते हैं, वहां पर जब उस लीडर को जाने की बात होती है तो सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, इसलिए कि वो पहुंचे ना। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, आपकी सरकार जाना तय है, और आपका जो ये डर है, आपके जो चेहरे पे ये शिकन है, आपके जो ये पसीने हैं, ये बताते हैं कि आपकी विदाई होने वाली है। आप चाहे भाजपा से गठबंधन कीजिए, चाहे आप AIMIM के साथ गठबंधन कीजिए, इस बार कुछ नहीं होने वाला। तेलंगाना की जो भोली भाली जनता है वो इस चीज को देख रही है कि करप्शन के अंदर और किसानों की जो सुसाइड हुई है, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, पिछड़ों के साथ जो आपकी हरकत है, जो आपने अपनी फैमिली को बढ़ाने का काम किया है और तेलंगाना को पिछड़ा बनाने का काम किया है, वो तेलंगाना की जनता भरपूर तरीके से देख रही है। आप तैयारी कर लीजिए,
आप तैयारी कर लीजिए, दिसंबर में आपकी विदाई तय है। और कांग्रेस पार्टी, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों से कह रहा हूं, हवाबाजी में नहीं कह रहा, बातों के लिए नहीं कह रहा, हम यहां पर सरकार बनाएंगे। और जैसे कि मेरे नेता राहुल गांधी ने ये बाकी स्टेट्स में, चाहे कर्नाटका हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, पहले छत्तीसगढ़, कोई भी स्टेट हो, जो उन्होंने कहा था कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हिमाचल के अंदर हमारी सरकार आई, 9 दिन के अंदर जो चीजें हमने कही वो हमने पूरी करी। और तेलंगाना के अंदर जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो चीज होने जा रही है। ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं अपनी सभी बातों को समेटते हुए एक आपसे एक शेर कहना चाहता हूं, जो तेलंगाना पर और बीआरएस पर और मुख्यमंत्री पर बिल्कुल फिट बैठता है कि दरिया तेरी खैर नहीं, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। ये बगावत तेलंगाना ने कर ली है कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं केसीआर जी को कि ये जो तेलंगाना ने बगावत कर ली है, ये आपकी जो गद्दी है, जो आप अपने आप को हैदराबाद का नवाब साबित करना चाहते हैं, जो आपने नवाबों से बड़ा महल बना लिया है, इस महल का ध्वस्त होना इस बार तय है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। आप सभी प्रेस के मित्रों का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।